So, good morning, class 6 students, and welcome you all back to your chapter Lines and Angles. आज पिछली क्लास में हमने पहले मैं वो बताता हूँ क्या किया था. So in our last class, we just did few topics, very minor topics that were point, line segment, and your line itself. Okay, and now in your episode number 2 or lecture number 2, we will be moving forward with array. Okay, so let's start up with our ray topic. So what is ray? So ray is nothing. Ray is a portion of line. It starts at one point, which is let's call it as the starting point or initial point of that ray, and goes endlessly in a direction. So the following are some of the models for the ray. For example, like beam of light from lighthouse, right? It has a starting point and it can go endlessly in any direction. Ray of light from torch, it has a starting point and it can go anywhere endlessly. And as sun rays, starting point and go endlessly in any direction. We have lighthouse in our poster as well, and as it is signifies ray example, ray model. So that is why I have put it at poster as well, and it is will be in thumbnail as well, I guess so. So yeah. Other than that, what is rays? So ray is nothing but a portion of line. Like line is of 2 points, right? Line has 2 point. Line segment is of 2 point, and then line is in like 2 point, but endlessly like they are there, right? Which we have read in last class, na? Like line L, which has been extended in any both direction. So we cannot that we cannot like image. So let's say AB, so it is like forever in both direction. That is how it is. So एक line जो है उसका एक starting point है, it has one point which we call it as starting point or initial point. उसको starting point या initial point कहते हैं. ठीक है. उसके बाद के जितने भी चीजें हैं, whatever the things there are after except like starting point initial point पे जो दूसरी लाइन दूसरा point होना चाहिए, but नहीं, जो दूसरी साइड है it goes endlessly in any in a direction. ठीक है, जो एक डायरेक्शन है उसमें endlessly वो जा रही है. आई लाइक शो यू, जैसे एक यहाँ पे है पॉइंट है आपका, मान लो तो सीधी सीधी लाइन जा रही है डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या कहें, इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, ये आई पी लिखना चाहता हूँ. इनिशियल पॉइंट और ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट. इनिशियल पॉइंट से लेकर के आपकी लाइन कहाँ गई है, यहाँ तक गई है. आई बात समझ. तो एक आपका रे का क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और फिर एक एंडलेसली एक डायरेक्शन में जाती है. एग्जाम्पल्स अगर आपको कोई बोले, सो लाइक लाइट हाउस, टॉर्च एंड सनलाइट. So look at the diagram, figure 2.3. 2 points are marked on it. One is the starting point A, another is point B on the path of the ray. We then denote the ray by AP. So ray को कैसे denote करते हैं, AP से, right? AP like A point है ये, A point है ये वाला, ठीक है. जहाँ से स्टार्ट हो रही है पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड लाइन जा रही है, रे जा रही है आपकी एक एंडलेस डायरेक्शन. और पी उस डायरेक्शन में, उस लाइन में एक पॉइंट है जो हमने मार्क कर रखा है, जो कि उसके वे में, उसके जगह पे, उसके पाथ पे आ रहा है. पॉइंट पी, तो वी आर जस्ट मार्क पॉइंट पी. तो हम इसको रे को कैसे वो लिख सकते हैं, सो ए पी, ए पी लिखेंगे और ऐसे एक लाइन बना देंगे विद वन एरो, जो आपका ए से पी में जा रहा है, राइट. एक एरो नहीं तो देखो, एक एरो जैसे लाइन के लिए हम बनाते क्या थे, लाइन सेगमेंट के लिए वी मेड दिस जस्ट अ लाइन. लाइन सेगमेंट के लिए हम दोनों तरफ एरो बनाते थे. एम आई राइट. लाइन सेगमेंट जो कि दोनों तरफ से एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में जाती थी, और लाइन के लिए हम बस एक एरो एक साइड में बनाएंगे. इज इट क्लियर? तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए. रे का क्या है, रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन in which there is a स्टार्ट एट वन पॉइंट, जिसको हम इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, और फिर ये एंडलेसली एक डायरेक्शन में जाती है. कुछ एग्जांपल्स जो है इसके वो है लाइट हाउस, टॉर्च, सन रेज. और वैसे ही अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने में चलें, तो ए इज लाइक स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पी उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी जो लाइन है, रे है, उसके बीच में जो पॉइंट पड़ता है, दैट इज योर पी, दैट इज सो इट मेक्स इट ए पी. आगे हम चलते हैं. तो लेट अस गेट इनटू इट. So yeah, Rihan marked a point on a piece of paper. How many lines? We have to figure it out. So Rihan marked a point on a piece of paper of how many lines can he draw that pass through the point? Okay, and Sheetal marked 2 points on a piece of paper. How many different lines can she draw that pass through the point? So
एक पीस ऑफ पेपर में पॉइंट मार्क करे तो कितनी लाइन उस पॉइंट से जा सकती है? रिहान ने एक पॉइंट मार्क किया है, शीतल ने 2 पॉइंट मार्क करे हैं एक पेपर में, उससे कितनी कितनी डिफरेंट लाइन वहां से निकल सकती है, पास हो सकती है, ये हमें बताना है। तो जो है चीज, आई लेट यू नो। पहली चीज, रेहान ने 1 पॉइंट मार्क करा था, है ना? तो रेहान मार्क जस्ट 1 सिंगल पॉइंट। तो फॉर दैट रीजन जो आपका रेहान है, एक पॉइंट पे कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस बन सकती है। तो दैट इज व्हाई विल राइट रेहान, क्या हो गया, क्या आई हैवंट रिटन, रेहान कैन ड्रॉ मैनी अनकाउंटेबल लाइन। क्यों? क्योंकि आपकी जो चीजें हैं, यानी कि पॉइंट में जो चीज होती है ना बच्चे, वो यही होती है कि एक पॉइंट से कोई भी ओरिजिन भी हो सकता है, कोई लाइन उससे पास भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है फ्रॉम दैट गिवन पॉइंट। सो इट इसलिए हम लिख रहे हैं टू द गिवन पॉइंट। तो रेहान कैन ड्रॉ मेनी अनकाउंटेबल, यानी कि बहुत लाइन है जो कि हम काउंट भी नहीं कर सकते, वो वहां से पास हो रही है थ्रू दैट गिवन पॉइंट। ओके। अब वहीं अगर हम बात करें शीतल की, तो शीतल का क्या हो गया बच्चा? शीतल, तो शीतल कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन through the two given points, क्योंकि जो दो गिवन पॉइंट है उससे बचेगा आपकी लाइन बन सकती है, लाइन सेगमेंट बन सकती है। तो इसीलिए शीतल जो है वो एक ही लाइन बना सकती है। वहीं जो आपका रिहान है, क्योंकि वो देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट ऐसे लेट से आपको गिवन है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। अब इस पॉइंट से तो कोई लाइन पास भी कर रही है, कोई लाइन स्टार्ट भी हो रही है, कोई लाइन बीच में भी पड़ रही है, क्या पता कोई एंड भी हो रही है। बट अगर मैं 2 लाइन की बात करूँ तो उसमें से सेम जो होगी वो एक ही होगी, है ना? कैन पास थ्रू बोथ, क्योंकि सेंस है बोथ से पास हो, दोनों से पास हो, तो इसीलिए तो रेहान एंड इसका आंसर है ये वाला। ऑलराइट, मैं इसमें लिख देता हूँ आंसर। थोड़ा इसको अलग कलर में कर देता हूँ ताकि अच्छे से देखना तो लगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4, which of the five mark points are on exactly one of the line segment, which are two which are on two of the line segment। तो यहाँ पे हमें बोला है कि नेम करो इस लाइन सेगमेंट को 2.4 में, और इसमें बताओ कि 5 जो मार्क पॉइंट है कौन से एग्जैक्टली एक लाइन सेगमेंट में है और कौन से 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट में है। तो इसमें व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके कितने कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं पहले वो देखते हैं। तो ये भी बन रहा है एक लाइन सेगमेंट, एक ये बन रहा है एल एम एम पी पी क्यू क्यू आर, राइट? सो हम पहले तो ये लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लाइक आई कांट राइट उसके ऊपर के लाइन, तो इसलिए आई जस्ट राइट एल एम एम पी पी क्यू क्यू आर। ठीक है, इसके ऊपर की जो लाइन है यू कैन मेक इट और योरसेल्फ, आई कांट हैव लाइक आई कांट मेक इट, बट वेट आई ट्राई। इफ आई लाइक डू दिस, so here do this, बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी लाइन सेगमेंट्स हो गई। इसको जस्ट पुट इट हियर, ये आपकी लाइन सेगमेंट्स हो गई। इसके बाद में आपसे क्या पूछा है कि कौन से वेट व्हिच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर एग्जैक्टली ऑन वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, कौन से 5 आपके एक साथ ही एक लाइन सेगमेंट में और कौन से 2 लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, मतलब एक में कितने हैं और दो में कितने हैं। तो देखो पहली जो है, अगर इफ यू कैन सी क्लियरली, तो एल है और आर है। एल से अगर अच्छा पी के साथ नहीं बनेगी, तो हमको सीधा एल के तक से आर पे ही जाना। थोड़ी सीधी बना लेना, आई डिडंट हैव स्केल हियर सो इसलिए ऐसा बन गया, बट एक तो लाइन सेगमेंट एल आर हो जाएगी, एक लाइन सेगमेंट एल आर हो जाएगी, एंड जो
एक ही एग्जैक्टली एक लाइन सेगमेंट पे विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, टू ऑफ द लाइन सेगमेंट यानी कि ये ये लाइन सेगमेंट हो गया ना, तो ये दो पे हो गए। तो हम लिख सकते हैं राइट पॉइंट L and R are exactly on one line segment and जो points हैं points M, P and Q, they are on two line segments, तो दो line segments में। ठीक है, इधर भी डाल देते हैं points, है ना पूरा। तो इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, उसके जो लाइन सेगमेंट की वो बना रखे वो एटलीस्ट में। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं? सो दे आर सेइंग नेम थ्री, sorry, not name three, name the rays shown in figure 2.5 is t the starting point of each of these rays। तो आपसे पूछा कि t स्टार्टिंग पॉइंट है ये दोनों रेस का और हमें नेम करना है रेस को। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कितनी रेस दिख रही है? तो हमें दिख रही हैं, आप लोग कहेंगे बहुत लोग दो रेस, बट गाइस यू आर रॉन्ग। यहाँ पे आपको चार रेस दिख रही है। दिस इज काइंड ऑफ अ टची क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी एक रो है, एक रे है, वो तो चलो ठीक है। फिर एक टी बी है, ठीक है। फिर एक टी एन है, ओके, एंड देन फिर एक एन बी भी है। तो इसीलिए ये है। अब इन्होंने पूछा है कि पहले आई राइट दिस देन आई आंसर द सेकंड क्वेश्चन हियर। आई राइट दिस फर्स्ट। हमारे पास कितनी रेस है? टी ए, टी बी, टी एन और एन बी। I'll see if I can make a line segment की projection as well. So kind of ऐसे बनेगी। ये जो आपकी बनी है लाइन सेगमेंट को, सॉरी रेस को हम ऐसे शो कर सकते हैं ना, जिसमें हमारा एक वो ऊपर से एक ही लाइन का एरो दिख रहा है दोनों लाइन में। तो जो लाइन ऊपर बनी है उसमें एक ही एरो दिख रहा है, मतलब कि एक साइड से इट इज गोइंग एंडलेस। अब हमसे इसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या टी स्टार्टिंग पॉइंट है हर एक रेखा, ईच रेखा, सिर्फ दो रेखा नहीं पूछा, टी ए या टी बी का, उसमें हमें बताना है। तो हम लिखेंगे नहीं। क्यों? गिव इट आंसर नो। T is the starting point of TB, TN, TA, but not of NP। NP का नहीं है, NP को छोड़ के बाकी सबका है। सो इसीलिए वी कांट से कि हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसीलिए दिस व्हाट इट इज, क्योंकि देखिए टी जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि एक इनिशियल पॉइंट जहाँ से रे निकल रही है, राइट। सो टी से ए निकल रही है, टी से एन निकल रही है, टी से बी निकल रही है, बट जो एन बी है, जो एनपी है वो तो बच्चे एन से निकल रही है ना। सो एन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर रे। तो इसलिए वी कांट से दैट ई स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ईच रे, जो कि इस चीज के इस रे के लिए नहीं है। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल appropriately to illustrate each of the following। सो ये थोड़ा बहुत काम आप लोग करेंगे।
यहाँ पे आई काइंड ऑफ ट्राई टू ड्रॉ इट। ठीक है, फर्स्ट वाला करके देखते हैं। ए, सो हमें क्या है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, लाइन है। तो ठीक है, तो लाइन को हम ऐसे ही डिपिक्ट कर रहे हैं पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ए पोर्शन, फोर का ए, फोर ए प्लस ये है जो ये जो पार्ट है ये है और बी, दिस इज योर ओ, दिस इज योर क्यू। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे देखिए पी क्यू ओ पी और ओ क्यू लाइन है क्योंकि ओ पे मीट कर रही है। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे अगेन वैसे से क्वेश्चन है एक्स वाई एंड पी क्यू जो इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट, एक पॉइंट सॉरी एम पे। तो ऐसी चीज बन जाएगी। ठीक है, आई फर्स्ट ड्रॉ, ड्रॉ फर्स्ट, ऐसे बना लेते हैं अभी हम इसमें। ठीक है, और else I'll just write over here only, it will more give you an idea। पार्ट जो है हमारा एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट का, जो कि पॉइंट एम में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका भी थोड़ा ऐसा ही फिगर बनेगा, जस्ट इफ आई चेंज इट ना, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जस्ट इट हियर, 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 दिस विल बी योर बी पार्ट। तो बी, यहाँ पे आपका लेट्स से ये वाली एक्स है, ये वाली वाई है, ये वाला बी है, ये वाला क्यू है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ये पॉइंट एम में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, और ये है सी पार्ट इसका। तो सी लाइन से, लाइन एन कंटेन्स पॉइंट ई एंड एम बट नॉट पॉइंट बी। ओके, सो एक लाइन है, लाइन सेगमेंट ने बोला, लाइन बोला है, सो फर्स्ट विल ड्रॉ जस्ट अ लाइन है। ठीक है, लेट्स से ये आपकी लाइन है, पे आपका एक पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे है। मेरा थोड़ा पॉइंट अच्छा सा नहीं बना रहेगा, तो माफ कर देना। ये थोड़ा एक्चुअली थोड़ा मुझसे एज एन टच पैड पे हो नहीं रहा है मुझसे, बट या यू कैन गेट एन आइडिया। थोड़ा छोटा बनाता है, शार्पर पेंसिल काइंड ऑफ चीज़ से। तो ये लाइन एल में ई है पॉइंट हमारा, ये पॉइंट एफ है, ये लाइन जो है ये लाइन यहाँ पे मार्क इट एज एल, और ये पॉइंट है डी जो कि इट इज आउटसाइड एंड इट इज नॉट ऑन द लाइन एल। ओके, नेक्स्ट जो है पॉइंट पी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ओके, सो पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी, लाइन मतलब बोला एज एन ए बी, तो हम इसको लाइन सेगमेंट मान के चलेंगे। ठीक है, तो ओके, ये नहीं करना, जस्ट इरेज इट। ये यहाँ पे है पॉइंट, और एक पॉइंट पी रख से हम यहाँ पे बना देते हैं। तो दिस इज योर पॉइंट पी, पॉइंट ए बी। ओके, so this is it। Next is in figure 2.6, यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 points a line 4 ray 5 line segment। तो पहले 5 पॉइंट जो हमें दिख रहे हैं साफ साफ, हम वो बताते चले। सो 5 पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, दे आर डी, ई, ओ, सी एंड बी, है ना। और लाइन क्या क्या है, सो आई वोंट लाइक मेक इट, आई जस्ट मेक एज एन
का जो नंबर है, नंबर कह रहा हूँ उसकी जो लाइन का वो है रिप्रेजेंटेशन वो करूँगा। आई वोंट मेक द लाइन उसके ऊपर में, बिकॉज यहाँ पे भी बनाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो लाइन यानी कि जो लाइन सेगमेंट की बात करें, तो लाइन की बात करें तो हम बस लाइन की बात करें। तो लाइन यहाँ पे डी ई भी है, डी ओ भी है ना, डी ई डी ओ, ठीक है, और डी बी भी है सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और आगे चले तो हाँ ये तो हो गया, ई ओ भी होगा, ठीक है। देन ई ओ के बाद ई बी भी हम ले सकते हैं। ओके, और ई बी, हाँ ई बी तक की है मेरे ख्याल से, नहीं ओ बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, तो ओ बी भी हो गया। तो दिस ऑल कैन बी योर लाइन। अब इन्होंने पूछा है चार रेज, फोर रेज क्या है, तो मेरे ख्याल से सारी जो रेज है वो ओ से होंगी शायद, है ना। तो इट विल बी ओ सी, ओ बी, ओ ई, ओ डी, है ना। एज सेड ओ सी, ओ बी, ओ ई, ओ ई। फाइव लाइन सेगमेंट्स जो है, लाइन सेगमेंट्स यानी कि जो लाइन सेगमेंट्स इन द सेंस ऑफ कि क्या क्या लाइन जो बन रहे हैं वो है क्या क्या आपका डी ई, डी ओ, है ना, डी बी, ई ओ, ई बी, है ना। और साथ ही साथ आपका अगर मैं कहूँ तो ओ बी भी पॉसिबल है, ओ सी भी पॉसिबल है, ओ बी एंड ओ सी। तो ये आपके सारे के सारे लाइन बन जाते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये आपके पांच लाइन सेगमेंट, और भी हमने बता दिए पांच के अलावा भी, तो यू कैन चेक फॉर दैट एज वेल। एंड अब हम पहुंचते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, which is your sixth question, जो क्या कह रहा है that here is ray OA, it starts at point it starts at O and passes through the point A. Okay. It also passes through the point B. Okay. तो एक O रे है, O रे है, तो O है पास करके पॉइंट A से, और B पॉइंट से भी पास कर रही है। फर्स्ट हमें इसमें बोला कि why it is named as OB। तो it is named as OB because क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट O है, और जो पॉइंट B है वो भी रे पे लाई करता है, जो कि एंडलेसली जा रही है डायरेक्शन A में। तो OA है तो एक्सटेंशन है आपका OB का, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, आई एम नॉट राइटिंग ऑल दिस, ठीक है। आई अगेन एक्सप्लेन। वो जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो रे जा रही है वो ये आ जा रही है जो आगे तक, तो उसमें उसी रे में लाइन, एक आपकी उसी लाइन में बी भी पड़ता है उस रे में, सॉरी नॉट लाइन, रे में, वो से जो स्टार्टिंग पॉइंट से रे जा रही है उस लाइन पे, उस रे पे, फिर से रे लाइन बोल दिया मैंने, उस रे पे एक पॉइंट बी भी पड़ता है। एंड अगर हम उसको आगे चलते जाएं तो डायरेक्शन ऑफ ए में जा रहे हैं। अगर हम कहें तो ओ बी इज एन ए, ओ ए इज एन एक्सटेंशन ऑफ ओ बी, ओ बी को ही हम थोड़ा एक्सटेंड करके ओ ए भी कह सकते हैं। कैन बी राइट ओ ए एस ए ओ एंड वाई ओ वाई। तो हम ओ ए नहीं लिख सकते, ए ओ को नहीं लिख सकते, तो हम ओ ए को जो है उसमें हमारे को समझ में आता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, वहीं अगर हम ए ओ कर देंगे, सो इट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी ए और एंडलेसली ओ डायरेक्शन में। तो इसलिए हम वी कैन नॉट राइट दिस। ओके, दिस इज व्हाई इट इज। एंड आगे वाली क्लास, आज की क्लास में हम इतना ही कर लेंगे रे का। नेक्स्ट क्लास में हम एंगल्स का देखेंगे, ठीक है, एंगल्स का शुरू करेंगे। फॉर टुडे वी हैव डन रेस एंड 5 questions and also there are some parts. So I'll meet you again in our next episode, episode number 2, and that will be covering episode number 2 तो यही है, episode number 3 में मिलेंगे, हम एंगल कवर अप करेंगे। ओके, so that's it for all today। मिलते हैं आपसे और जल्दी में कभी और अगले दिन। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टू रिवाइज